નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે મહત્વપૂર્ણ એક સમાચારથી. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ તો કુખ્યાત શિવની હવાલા કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા 11 જે પોલીસ અધિકારીઓ છે તેમાંથી 8ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ મધ્યપ્રદેશમાં હાલ આ બહુ મોટી મહત્વપૂર્ણ ખબર છે મધ્યપ્રદેશથી. અને જે જબલપુરના આઈપીએસ અધિકારી જીતેન્દ્રસિંહ તેમની ટીમ સાથે શિવનીમાં વિગતવાર તપાસ કરી રહ્યા છે. તેમના નિર્દેશમાં અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે અને અન્ય પોલીસ જે અધિકારીઓ છે તે લોકોની અટકાયત કરવા માટે અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે. છિંદવાડા ઝોનના ડીઆઈજી રાકેશ કુમાર સિંહે જાહેરાત કરી હતી કે આજે સાંજ સુધીમાં એસડીઓપી પૂજા પાંડે સહિત 8 જે પોલીસ અધિકારીઓ છે તે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આવતીકાલે કોર્ટમાં તેમને રજૂ પણ કરવામાં આવશે. थाना लखनवाड़ा में अपराध 473 आवेदन 25 कायम किया गया, जिसमें इसमें जो धाराएं लगी हैं आशय के संयुक्त लूट अपहरण और डकैती की धाराएं हैं. इन अपराधों के इस पूरे एफआईआर में कुल 11 आरोपी हैं. 11 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनके खिलाफ एसआईटी अपनी वैधानिक कार्रवाई करेगी. शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. ये मामला गंभीर था, इसलिए लगातार इसके लिए अलग से एसआईटी आईजीपी सर द्वारा गठित की गई. एसआईटी के प्रभारी यहीं पर मौजूद તો સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ મધ્યપ્રદેશની જ તો કટની જિલ્લામાં ઈઓડબ્લ્યુએ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બરવારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના બાસાડી ગામમાં સરકારી વાજબી ભાવની જે દુકાન છે તેમાં સેલ્સમેન સુશીલ ગુપ્તાના પરિસરમાં 20 સભ્યોની ઈઓડબ્લ્યુ ટીમે દરોડો પાડ્યો હતા અને જેના કારણે વિસ્તારમાં વ્યાપક ભય ફેલાયો હતો. એટલે ત્યાં પહોંચ્યા બાદ ટીમે ઘરને ઘેરી લીધું હતું અને મિલકત, બેંક ખાતા અને રોકડ સંબંધી દસ્તાવેજો શોધવાનું શરૂ કર્યું હતું. અપ્રમાણસર સંપત્તિની શંકાના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ટીમને ઘણા મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય દસ્તાવેજો, પ્લોટ રજિસ્ટ્રી અને બેંક વ્યવહારના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. ઈઓડબ્લ્યુની પ્રાથમિક તપાસમાં અપ્રમાણસર સંપત્તિનો ખુલાસો થયો હતો. સુશીલ ગુપ્તાની 1991 થી 2019 દરમિયાન કાયદેસર આવક આશરે 19 લાખ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે તેમના નામે 56 લાખ રૂપિયાથી વધુ મિલકતનો અને રોકાણ મળી આવ્યા છે. અને આમાં વેરહાઉસ, ફાર્મ હાઉસ, શહેરી વિસ્તારમાં જમીન અને રહેણાંક ઇમારતોનો સમાવેશ થાય છે. સુશીલ ગુપ્તા લગભગ 2 દાયકાથી બસરી ગામમાં રેશન શોપ સેલ્સમેન તરીકે પોસ્ટ કરી રહ્યા છે અને પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન તેમણે ઘણી વ્યાપારી મિલકતો અને ખેતીની જમીન પણ મેળવી છે. અને ટીમ હવે તપાસ કરી રહી છે કે શું આ મિલકત તેમના કાયદેસર આવકના સ્ત્રોતો કરતાં વધુ છે. હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે તો 5 ગામના ખેડૂતો આજે મોટી સંખ્યામાં ખંડવા કલેક્ટરની જાહેર સુનાવણીમાં પહોંચ્યા હતા અને પાક રાહતની માંગણી કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સોયાબીન અને કપાસના પાકને આશરે 90% જેટલું નુકસાન થયું છે. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમના ગામોમાં સર્વે ટીમ દાવો કરી રહી છે કે દરેક ગામમાંથી ફક્ત 5 કે 7 ખેડૂતોને રાહત માટે વિચારણા કરવામાં આવશે. જોકે બધા ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોએ કલેક્ટરને પોતાની સમસ્યાઓ સમજાવી અને તાત્કાલિક પાક વળતરની માંગણી કરી હતી અને આ માંગણી કરતી અરજી એમને આપી હતી. आज हम कलेक्टर साहब के पास आवेदन देना है. 23 सितंबर 2025 को भी हमने आवेदन दिया था फसल नुकसानी के लिए. फसल नुकसानी 99% लोगों की हुई है. उसके बाद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है. हमने साहब से निवेदन किया था 23 तारीख को. साहब ने बोला कि हम 24 घंटे या 72 घंटे में आपकी नुकसानी का सर्वे करवाएंगे, लेकिन किसी भी गांव में किसी भी तरह की कोई नुकसानी का सर्वे नहीं हो पाया. अभी पटवारियों से या तहसीलदार साहब से बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि सिर्फ 5 से 7 नाम का सर्वे हमको बोला गया है. तो क्या 5 से 7 ही किसान गांव में रहते हैं? आज अभी साहब से बात करी है तो साहब बोले कि आप आवेदन आपके जमा करो, हम कार्रवाई करवाएंगे. आज हम 5 से 6 गांव 7 गांव हमारे 7 गांव के किसान इकट्ठे हुए. अगर 3 दिन में ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो उसके बाद हम आंदोलन की चेतावनी साहब को दे देंगे. आज
हम 5 गांव से आए हैं, अत्तर, तलवाड़िया, रेवाड़ा, चिचगोन, बामजार, सिर्रा से। सभी किसानों की फसल नुकसानी हुई थी, 100% हुई है। और हम 23 सितंबर के दिन भी आवेदन दे के गए थे साहब को। साहब बोले कि हम 72 घंटे में आपकी जांच करवा रहे हैं। जांच में 0 सन्नाटा रहा। साहब का इतना प्रेशर है कि नीचे लेवल का जो कर्मचारी है उसको बोलते हैं कि 5-5 नाम दो। तो यकीनन ये जो नुकसानी हुई है ये हर गांव में वेरिड है। जहां जहां पर लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर पानी भरा, वहां नुकसानी हुई। कहीं पर 95-60 वैरायटी में अधिक नुकसानी हुई है और कहीं पर पीला मोजाइक की वजह से अधिक नुकसानी हुई है। तो जितने भी हमारे तहसीलदार हैं उनको यही निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां पर अधिक फसल नुकसानी इन 3 कारणों की वजह से हुई है वहां पर प्रकरण बनाए जाए। इसमें किसी प्रकार की कोई किसानवार सीमा तय किया जाना ये एक भ्रामक जानकारी है। ऐसा कतई नहीं किया गया है। यदि किसी गांव में अधिक किसान भाइयों की भी अधिक फसल नुकसानी हुई है तो उनके प्रकरण। હવે સમાચારોમાં આપણે આગળ વાત કરીએ તો ભોપાલમાં મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર મોહન યાદવની અધ્યક્ષતામાં મંત્રીમંડળની બેઠક યોજાઈ હતી। માહિતી આપતા કૈલાશ વિજયવર્ગીયે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો, યુવાનો અને રાજ્યના હિતમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે। મંત્રીમંડળની બેઠકમાં ભાવાંતર ચૂકવણી યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને રાજ્યના પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થું એટલે DIA 2% વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો। શ્રી અન્ના ફેડરેશન તેના ખેડૂતોને લાભ આપવા માટે કોડો કીટનું માર્કેટિંગ કરશે। આ હેતુ માટે ફેડરેશનને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે। ધારાસભ્ય મધુ વર્માને હૃદય રોગના હુમલાથી બચાવનાર પોલીસ અધિકારી માટે આઉટ ઓફ ટર્ન પ્રમોશનની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે। भावांतर योजना जिसकी घोषणा तो हमने पहले ही कर दी, पर आज कैबिनेट ने उसको विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित किया है। आप सभी जानते हैं कि भावांतर योजना सोयाबीन का MSP इस बार 5,328 MSP हुआ है। साधारणतया मार्केट का रेट कई बार MSP से कम होता है। इस बार तो शायद करीब करीब बराबर जा रहा है, पर हाँ फिर भी कुछ स्थानों पर MSP से कम है मंडियों में रेट। किसानों का नुकसान नहीं हो ये हमारी जवाबदारी है और MSP पे ही उनको भाव मिले और इसीलिए भावांतर योजना प्रारंभ की है। इसमें किसान किसी भी रेट में खरीदे। एक पूरे प्रदेश की मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे और उस मॉडल रेट से कम में यदि उसका बिकता है तो मॉडल रेट और भावांतर के बीच की राशि किसानों को मिलेगी। तो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत है। कुटकी आप सभी जानते हैं कि एक समय में कोदो कुटकी 2 रुपये और 3 रुपये किलो किसानों को बड़ी मुश्किल से मिलते थे और ये कोदो कुटकी वहीं पैदा होता था जहां पानी नहीं होता था, कम पानी में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोदो कुटकी का भाव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा दिया। एक राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, श्री अन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया है। इस श्री अन्न फेडरेशन इस कोदो कुटकी को मार्केटिंग करेगी, इसका वैल्यू एडिशन के लिए काम करेगी। और विधायक साथी हैं मधु वर्मा जी इंदौर के, उनको बहुत सीवियर अटैक आया था और एक उनके गनमैन थे उनके साथ में उस वक्त, 15वीं वाहिनी के श्री अरुण सिंह भदौरिया। उन्होंने बहुत मेहनत करके और घर से हॉस्पिटल ले जाने में उन्हें CRP दिया, मुंह से ऑक्सीजन देके उनका हार्ट चलाया और डॉक्टर का ऐसा कहना था कि इतना सीवियर अटैक था कि ये यहाँ तक नहीं आ सकते थे यदि ये जवान ये सारी प्रक्रिया नहीं करता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब देखने आए तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि इस जवान ने तो मधु भैया की जान बचाई है, इसको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम इसका आउट ऑफ दी टर्न प्रमोशन करेंगे। विभाग लोगों की मांग थी विद्यार्थियों की, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लास, बाहर के कोचिंग क्लास में हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमने उन सब रजिस्टर्ड कोचिंग क्लासों को जो नेशनल लेवल की है
उसमें भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, इसलिए उन सब का रजिस्ट्रेशन करने का पहली बात निर्णय लिया है। दूसरा, उनके आवास के लिए, यदि वो शहरी क्षेत्र में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं तो शहरी क्षेत्रों में पढ़ते हैं, तो उनके आवास का किराया भी सरकार देगी। 1,000 रुपये उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करें किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ઝાંસીમાંથી એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે। ડગરવાહ ગામમાં 5 વર્ષ પહેલા પ્રેમી સાથે ઘર છોડીને ગયેલી એક મહિલા તેના પતિના મૃત્યુ અને તેને મળેલા 3.5 મિલિયન એટલે કે 35 લાખ રૂપિયાના વળતરની જાણ થતા પાછી આવી છે। મહિલા હવે વળતર અને મિલકતમાં હિસ્સો માંગીને તેના બાળકો અને સાસરિયાઓ માટે સમસ્યા ઊભી કરી રહી છે। જો અને સમજો આખો આ ખાસ રિપોર્ટ। 5 साल का अलगाव, पैसे देख उमड़ा प्यार, 35 लाख की लालच या मां की मोहब्बत। डगरवाह गांव में विवाद का नया मोड़, बच्चों ने मां के खिलाफ की शिकायत। पैसों और संपत्ति के लिए लौट आई मां, बच्चों परिवार के लिए सिरदर्द बनी मां। हम बात कर रहे हैं झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र के डगरवाह गांव की, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां 5 साल पहले अपने बच्चों और पति को छोड़कर चली गई रेखा पति की मौत और मुआवजे की रकम सुनते ही वापस लौट आई, लेकिन लौटते ही बच्चों पर मारपीट और संपत्ति पर कब्जे का आरोप लगाते हुए परिवार में तनाव बढ़ा दिया। एक महिला जो कि 5 साल पहले अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी, पति की मृत्यु और जमीन बीड़ा में जाने और उसका मुआवजा मिलने की खबर सुनकर पत्नी 5 साल बाद अपने बच्चों के पास लौट आई। बच्चों ने अपनी मां पर मारपीट और संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार मृतक किसान ज्वाला प्रसाद अहिरवार की संपत्ति पर बीड़ा आवासीय विकास परियोजना के माध्यम से मुआवजा दिया गया था, जिसमें उनके 4 भाइयों को 35 लाख रुपए से अधिक मिले। ज्वाला प्रसाद ने 15 साल पहले रेखा नामक महिला से विवाह किया था और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अंशु 11 साल का है, जबकि छोटा बेटा अमित 6 साल का। ज्वाला प्रसाद के भाई राजेंद्र ने बताया कि 5 साल पहले उसकी भाभी रेखा अपने दोनों बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी। अब भाई ज्वाला प्रसाद की मौत और मुआवजे की रकम की जानकारी मिलने के बाद रेखा वापस अपने घर लौट आई। लौटने के बाद से ही वो पैसों को लेकर विवाद कर रही है। वहीं मृतक के बेटे अमित ने बताया कि उनकी मां उन्हें मारती पीटती है और खाने पीने भी नहीं देती। मां हमें परेशान कर रही है, हम चाचा के पास रहना चाहते हैं। मां हमें छोटे में ही छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी और अभी जब पापा खत्म हुए तो लौटकर वापस आ गई है और हिस्सा मांग रही है, क्योंकि हमारे पिता को बीड़ा का पैसा मिला है। बच्चों की चाची मालती का कहना है कि मेरे जेठ की पत्नी 5 से 6 साल पहले उन्हें छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई थी, लेकिन जब हमारे जेठ खत्म हो गए तो हिस्सा मांगने आई है, क्योंकि हमारे जेठ की जमीन बीड़ा में चली गई और उन्हें 30 से 35 लाख रुपए मिले हैं। घर लौटने के बाद से ही जेठ की पत्नी पैसों के लिए लड़ाई कर रही है। सर, हमारे पिताजी खत्म हो गए और सर हमारे पापा ने घर बना लिया था और सर वो मम्मी नहीं, वो भाग गई थी और सर फिर वो आ गई और सर पैसा के लिए आए, वो कह रही 1/3 करवा दो और सर ना रोटी बनाती थी और ना कुछ। अभी आप किसके साथ रहते? चाचा के साथ। कितने साल पहले भागिन थे? वो 4-5 साल। कितने भाई हो तुम? 2। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु। और छोटे का? कहाँ के रहने वाले हो? इस मामले में मृतक के भाई राजेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक किसान की पत्नी रेखा ने लगभग 5 साल पहले ही अपने दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन जैसे उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उन्हें ज्वाला प्रसाद के निधन और मुआवजे की बड़ी रकम की खबर मिली। वह घर लौट कर आई और पैसों के लिए लगातार विवाद खड़ा करती रही। दोनों बच्चों ने भी अपनी मां पर
गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मां उनके साथ मारपीट करती है। इसके अलावा उन्हें खाने पीने को भी नहीं देती। मृतक के बड़े बेटे अंशु ने आगे बताया कि चाचा के पास रहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी मां उन्हें छोटे में ही छोड़कर भाग गई थी और अब पैसों की लालच में लौट कर आई है। सर बीड़ा का पैसा आ गया, सो आ गई। वो बात का कह रहे मेरे आदमी था, मेरे बच्चे हैं। कितने साल पहले भाग गई थी? सर ये 3-4-5 साल पहले भाग गई सर। अच्छा, क्या नाम है? राजेंद्र सर। अच्छा, बाका रेखा नाम। और भाई का क्या नाम था? ज्वाला प्रसाद। उसको कौन बच्चे हैं? दो? हाँ, दोनों बच्चे हो गए। अच्छा। और सर महिला ना पढ़ाती है ना लिखाती है, जो वो आदमी ढंग ने बुलाती है सर, वो बस बाद में मॉर्निंग मुड़ा भूखे रूट रहा, खुद रोटी बना रहा था। जो कितना तो 5 साल पहले अभी आ गई? अभी आ गई सर, खत्म होने पर। कब हुआ खत्म? खत्म होंगे सर 4 तारीख में, 8वें महीना में। कैसे? बीमार थे सर। पुलिस के अनुसार ज्वाला प्रसाद ने 35 लाख रुपए मुआवजे से रक्सा टोल के पास 50 बाय 50 का एक प्लॉट खरीदा था, जिसमें से आधा प्लॉट पहले ही तैयार किया जा चुका था। बच्चों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी मां पिता द्वारा बनाए गए प्लॉट पर नजर रख रही है और उसे बेचने की धमकी दे रही है। रक्सा थाना पुलिस ने बच्चों को उनके चाचा के पास सुरक्षित रखा है और मामले की जांच की जा रही है। झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र के डगरवा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपको होश उड़ जाएंगे। ये पूरा मामला डगरवा गांव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ की रहने वाली रेखा पहले 5 साल पहले अपने पति ज्वाला को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। इसके 2 बच्चे हैं और ज्वाला की जो जमीन थी उसका अधिग्रहण बीड़ा ने कर लिया, जिसका मुआवजा मिला है। इसके बाद जैसे ही ये खबर उसने सुनी कि उसके पति की मौत हो गई और जो मुआवजा में मिला पैसा उसको मिला है, वह वैसे ही तुरंत उसके घर पहुंची, यानी कि डगरवा गांव में। और जब से ही वह अपने बच्चे के साथ रह रही है, बच्चों ने ये मामला को लेकर थाने पहुंचे, क्योंकि बच्चों का आरोप है कि मां लगातार अगस्त माह यानी कि पिता के मौत के बाद ही उन बच्चों को प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि मां जमीन पर और जो मुआवजे में मिला पैसे पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि इस पूरे मामले में बच्चों और उनके परिजनों ने थाने में शिकायत की है। फिलहाल पूरे मामले की रक्सा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज। હવે આપણે વાત કરીએ મથુરાની, તો મથુરાથી એક એવો સમાચાર સામે આવ્યો છે કે જેમાં પહેલા તેઓ પ્રેમમાં પડ્યા, પછી તેઓએ લગ્ન કર્યા અને પછી હત્યા કરી। પછી પતિએ તેની પત્નીનો મૃતદેહ 4 દિવસ સુધી ઘરમાં રાખ્યો। મથુરામાં એક અજાણી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા સનસનાટી મચી ગઈ છે। એવી શંકા છે કે મહિલાની હત્યા કરીને પછી ફેંકી દેવામાં આવી હતી। મહિલાનો મૃતદેહ ભાડાના ઘરમાંથી મળી આવ્યો છે। आ रिपोर्ट जुओ और समझो। पहले प्यार का सिलसिला, फिर शादी का फैसला। शादी से पहले प्यार, शादी के बाद बढ़ी तकरार। तकरार की हद हुई पार, पति का मौत वाला प्यार। मौत के बाद भी इंतजार, 4 दिनों तक घर में रखी रही लाश। विवाह किया तो विश्वास करना अपने जीवन साथी पर, कान देखना, कुआं नहीं। बात बात पर लड़ मत जाना, ये बात हम आपको नहीं बोल रहे। एक माँ अपने बेटी को बताती है जब वो शादी करके अपने घर जाती है। माँ बताती है कि सुख दुख के साथ ही रहोगे दोनों, लेकिन जब यही प्यार और यही पति मौत का कारण बन जाए तो तस्वीरें खौफनाक हो जाती है। शादी में विश्वास की उम्मीद होती है, लेकिन जब यही विश्वास मौत का कारण बन जाए। मथुरा में मिली महिला की लाश ने इस बात को सच्चाई में बदल दिया। पत्नी करिश्मा की हत्या के बाद शव को 4 दिन तक घर में रखा गया, जिससे इलाके में डर और सस्पेंस फैल गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र स्थित दसवीसा की, जहां किराए के मकान में एक महिला की लाश मिली। महिला के पति ने ही उसकी हत्या कर दी है। इसका बड़ा कारण बना आपसी विवाद, जिसके कारण पति शैलेंद्र ने उसकी हत्या कर दी। पड़ोसियों की जानकारी के अनुसार करिश्मा और उसका पति शैलेंद्र, जो कासगंज के नगला बरिया के रहने वाले हैं, कुछ समय पहले प्रेम विवाह कर गोवर्धन में किराए के मकान में रहने आए थे। तो वहीं पड़ोसियों ने बताया कि दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। हाल ही में शैलेंद्र ने अपनी पराठे की ठेला लगाना बंद कर दी और घर में ही रहने लगा, लेकिन कुछ दिनों से पड़ोसियों के उसके घर से बदबू आने लगी। सूचना मिलते ही मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। गोवर्धन पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घर का गेट खुलवाया। गेट खुलते ही महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया। साथ ही शरीर पर गहरे चोट के निशान भी थे।
पुलिस ने शैलेंद्र से पूछताछ में पुलिस संतोषजनक जवाब नहीं पा सकी और शक के आधार पर उसे हिरासत में ले लिया गया। गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना का पूर्ण खुलासा किया जाएगा। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे क्षेत्र में डर और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांच में जुटी हुई है। शैलेंद्र नाम का लड़का नंगला बैरिया का, जो करिश्मा अपनी पत्नी के साथ रहता था, उसका 1 साल का बच्चा था। ऐसा ज्ञात हुआ कि 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी, इसकी मृत्यु हो गई। इसके शव को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी होगा, जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोवर्धन में पति ने पत्नी करिश्मा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और गहन जांच शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके में डर और चर्चा का माहौल बना दिया है। मथुरा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। आपको बता दें कि ये जो इलाका है मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र कस्बा 10 बिसा स्थित ये गली है और ये वही मकान है जिसमें ये जो महिला वो रहती थी अपने पति के साथ। आपको बता दें कि ये पीछे से कासगंज के रहने वाले हैं। इनका नाम शैलेंद्र है और पत्नी का नाम करिश्मा बताया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये इस किराए के मकान में रहते थे, लेकिन बीती रात इस मकान से महिला जो करिश्मा है उसका शव बरामद पुलिस के द्वारा किया गया। जिस तरीके से लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस मकान में करिश्मा और शैलेंद्र कासगंज से आकर किराए पर यहाँ रहते थे और शैलेंद्र गोवर्धन के जो बिजली घर परिक्रमा मार्ग के समीप एक ठेल पर पराठे बेचने का काम करता था। बताया यह भी जाता है कि करिश्मा के साथ उसने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद जब वो यहाँ आकर रहने लगा तो दोनों के बीच के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। लगातार इन दोनों के बीच विवाद अक्सर हुआ करता था और इसी विवाद के चलते बताया ये जा रहा है कि विवाद के चलते ही इस घटना को शैलेंद्र के द्वारा अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से करिश्मा का जो शव मिला है वो सड़ी गली अवस्था में मिला है। बताया गया है कि शव से बदबू उठ रही थी, दुर्गंध उठ रही थी, लोगों को यहाँ रहने में परेशानी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से शैलेंद्र ने चतुराई दिखाई, यानी कि करीब 4 दिन पहले उसकी हत्या की गई और हत्या के बाद इस घर में वो सबके पास ही रहता था, स्प्रे छिड़कता था, अगरबत्ती यहाँ लगाया करता था। उसके जो बदबू है वो बाहर तक ना फैल पाए, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने मकान मालिक को सूचना इसकी दी। मकान मालिक के द्वारा पुलिस को बताया गया। पुलिस यहां मौके पर पहुंची तो करिश्मा का शव सड़ी अवस्था में कल यहां बरामद कर लिया गया। हालांकि पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो कहां है फिलहाल? इस समय पुलिस की गिरफ्तारी में है। पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले रखा है और पुलिस जांच में जुट चुकी है। हत्या का मामला ये पूरा बताया क्योंकि महिला के जो शरीर पर तमाम जो चोट के निशान हैं वो बने हुए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम से सारी घटना स्पष्ट हो जा, लेकिन दिखाऊंगा कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। देखिए बाल जो हैं वो यहाँ साफ तौर से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये महिला के जो बाल हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। पीछे राज क्या है, पुलिस पूछताछ कर रही है सारे घटनाक्रम का, तभी इसका कोई खुलासा हो पाएगा। आपको बता दें कि महिला कासगंज की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा इतना जरूर बताया गया कि अभी तक महिला के जो परिजन है उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज। तो आता અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો, વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત।